Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati College of Engineering Technology, Durg. Today in robotics, we are continuing our topic of robot applications in industries. Okay, what we are going to talk about today? Today we are going to talk about spray painting, mobile robots and microbots. And also we are going to talk about recent development in robotics and safety consideration, what we have with robots. Spray painting. Every metallic material will be painted at the final stage to produce in order to protect. Okay, in spray painting is done mostly in vehicles, nowadays in fridge, electronic devices, electronic equipments, ACs, refrigerators. Most of the things were done by spray painting. In industrial, in an automobile industry, the finished metals are painted with different colors for attracting the customer. As spray painting जो हम लोग करते हैं वो बहुत हजार्डियस होता है, क्योंकि वो बहुत, ये देखिए स्प्रे जो है, अगर हम लोग इसको गन यूज़ करके, ह्यूमन बींग अगर इसको यूज़ करके स्प्रे करें तो ये कितना तेज़ी से फैल रहा है, और इट विल, इफ़ इट एंटर्स अ ह्यूमन बॉडी इट विल हार्म थ्रू आउट बॉडी. तो ये बॉडी को ख़राब बहुत हार्म करेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा इंजीरियस भी होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं. तो इसके लिए हम लोग स्प्रे पेंटिंग के लिए हम लोग रोबोट्स यूज़ करते हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कलर्स हमको यूज़ करना होता है, तो इसलिए भी रोबोट ज़्यादा हेल्पफुल होता है. मेथड यूज्ड फॉर स्प्रे पेंटिंग. स्प्रे कोटिंग मेथड होता है और एक इमर्शन एंड फ्लो कोटिंग मेथड होता है. देखिए ये दो तरीके के यूज़ करते हैं हम लोग. स्प्रे गन्स करते हैं, इसमें भी अगर वेल स्किल्ड ह्यूमन लेबर यूज़ होता है रोबोट को रन करने के लिए. ठीक है. वाई रोबोट्स? रोबोट्स क्यों यूज़ करनी चाहिए स्प्रे पेंटिंग के लिए? हार्मफुल प्रोसेस है बहुत ज़्यादा. पेंटिंग ऑपरेशन तो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है. प्रोडक्शन ऑफ फायर ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेम. कई बार क्या होता है कि हवा, अगर आग हल्की सी मिली तो उसमें बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है. ठीक है. पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर डिसीज़. देखिए मैंने कहा था, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर एंटर कर जाए तो इसमें कैंसर डिसीज़ होने का चांसेस है. नॉइस फ्रॉम द स्प्रे गन नोजल विल कॉज हियरिंग प्रॉब्लम्स. टू मच नॉइस होता है क्योंकि इसमें नोजल यूज़ करते हैं, और नोजल से बहुत ज़्यादा प्रेशर और वेलोसिटी में जो स्प्रे है वो निकलता है. A robot is attached a spray gun on its wrist and acts like a end effector. The operation is programmed by human with the help of teach-through method. Okay, the robot must have several needs such as 2 or more program storage, continuous path control, manual lead through. Hence, the gun is operated by a human being but from the external end through a command operation. Okay. Advantages of spray painting robot are high consistency, better productivity, increased labor safety, less power consumption, minimizes the use of paint. पेंट का यूज़ बहुत कम होता है. मोबाइल रोबोट्स. मोबाइल रोबोट्स का काम क्या है? रोबोट्स that moved around the legs, tracks and wheels from one place to another are called mobile robot. In 1979, a nuclear accident in the USA caused a leak of radioactive material, which led to production of special robots. These special robots are used for moving a radioactive material from one place to another, as radioactive materials are too much dangerous and it can't be come in contact with the human being. Why go from place to place? Transport good qualities, carries messenger, get through faster, do a task while. Nowadays, these robots are used to settle down or distribute radioactive material throughout the campus of nuclear power plant. Okay, it can easily carry the message, it can easily collect the data, get away from some time. Okay, most robots get around by rolling. Walking is harder, it require balancing. वॉक करना बहुत आसान, बहुत कठिन होता है, बैलेंसिंग रिक्वायर होता है. स्विमिंग ओनली वाटर वर्क्स इन वाटर. Flying requires a lot of speed and energy. Wheels are trends that makes very easy of all the three things. Okay, while using wheel we can use all these things, or while using a shaft on a wheel like a boat, it can be used in the robot. Mobile robot work sensors, motors, wheels and programming. These four are the main involvement that are involved in a robot for doing a work, a mobile work. See, a small robot over there. Here it is wheels, here is the center sensors. Okay, here this is the arm
and this is also armed working with someone, and this is the degree of freedom. This is video camera, here microphone, here antenna, proximity sensor, ultrasonic sensors are also produced also in there, microwaves are also attached. These all things combines a robot. Components of a mobile robot. A mobile robot is combination of various physical and computational components. In terms of hardware components, a mobile robot can be considered as a collection of subsystem for locomotion, how the robot moves through this environment. Sensing, its user sensor are used to sense the environment in which a robot has to work in a mobile nature. Reasoning, how the robot maps the measurement. If a robot senses obstacle, he can sense that how much size of this, how he can cross over it, or if there is any space near around it, so he can cross over it. Communication, how the robot communicates with the outside operator, कैसे communicate करता है. और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, प्लानिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स. माइक्रोबॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं ये, और अपीयरेंस ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट मैकेनिकल सिस्टम इन सिलिकॉन, MEMS. ओके, क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास. ऑन द मेजर चैलेंज इज द डेवलपिंग ऑफ माइक्रोबॉट इज टू अचीव मोशन अचीव करना विथ लिमिटेड पावर सोर्स. कैसे अचीव होगा इसमें. माइक्रोबॉट्स में हम लाइट वेट बैटरी रखेंगे, कॉइन सेल्स रखेंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, वाइब्रेशन फ्रेंडली होगा, लाइट एनर्जी से काम करेगा. मेडिकल माइक्रोबॉट जैसे कि सेल्स देखिए, बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं यहाँ पर. ये मेडिकल माइक्रोबॉट क्या करेगा, ये एक सेल को टेस्ट करने के लिए वहाँ पर से खींच के निकाले, ब्लड सेल को. देखिए एक मॉस्किटो का शेप लिया हुआ है माइक्रोबॉट ने. ये यहाँ पर एक छोटे छोटे माइक्रोन चिप्स बनाए हुए हैं, सोलार पैनल लगे हुए हैं. टास्क, ऑब्टेनिंग एंड मेजरिंग डेटा बाय सेंसिंग. ओके, डेटा सेंस करने के लिए भी काम आएगा. कलेक्टिंग सैंपल्स के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए. ट्रांसफरिंग इमेजेस ऑफ सेंट्रल कंट्रोल स्टेशन. A microbot is also contained a mobile communication module by means of which it can receive commands and the control center and send response. ये कमांड रिसीव भी कर सकता है और कंट्रोल स्टेशन को वापस रिस्पॉन्ड भी कर सकता है. इसके सबसिस्टम्स क्या है, मोबिलिटी है, ठीक है, पावर होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंट्रोल एंड कंप्यूटेशन होना चाहिए, इसमें सेंसर्स होने चाहिए. रोबोट्स इन स्पेस, देखिए ये रोबोट्स इन स्पेस वर्क स्टेशन है, यहाँ पर पूरे रोबोट से ही काम करते हैं जो सेंसर्स और सिस्टम्स में काम करते हैं. देखिए कुछ रोबोट्स और हैं, वाटर के अंदर काम कर रहे हैं, वाटर के अंदर डेटा करेक्शन के लिए काम कर रहा है. हैजबोट ऑपरेटिंग एट एटमॉस्फेयर कंटेनिंग कंबस्टिबल गैसेस. जहाँ पर कंबस्टिबल गैसेस है वहाँ पर भी रोबोट को भेज के हम तो वहाँ पर सेंसर्स के थ्रू सेंस कर रहे हैं. माइक्रो सर्जरी के लिए रोबोट यूज़ कर रहे हैं. देखिए ये रोबोटिक आर्म कैसे काम करता है. ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का आर्म है और ये रोबोट आर्म है. एट होम पे क्या है, देखिए सोनी HDR 3DX एंटरटेनमेंट रोबोट एक डॉग का काम कर रहा है, सोनी ऑडियो, ठीक है. रोबोटिक डॉग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से COG और किस्मत फ्यूचर रोबोट्स हैं. एनाटॉमी में देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड में काम कर रहा है, ये ट्रैक्टर जैसा मशीनरी है. उस जगह पे गार्बेज कलेक्शन कार्ट है, गार्बेज कलेक्शन कर रहा है, ठीक है. ह्यूमनॉइड रोबोट्स, होंडा ह्यूमनॉइड रोबोट्स. क्या क्या टास्क मिलते हैं इसको, स्पेस एक्सप्लोरेशन, केमिकल स्पिल क्लीनअप, डिसआर्मिंग बॉम्ब्स, डिजास्टर क्लीनअप, बोरिंग के लिए वेल्डिंग कार फ्रेम्स, पार्ट पिकअप एंड प्लेस, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, हाई प्रिसीजन हाई स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग, सर्जरी के लिए, प्रिसीजन मशीनिंग के लिए. ये टास्क हैं जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को मिलते हैं. ऑटोमेशन में, मशीनरी में, बॉटलिंग मशीन, डिश वॉशर, स्प्रे पेंटिंग. रोबोट्स मशीनरी डिज़ाइन में पिक एंड प्लेस आर्म्स, मोबाइल रोबोट्स, कंप्यूटर न्यूमिक कंट्रोल मशीन्स, ठीक है. रिसेंट डेवलपमेंट इन रोबोटिक्स, देखिए न्यू रोबोट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एटलास. हाफ टर्न इन द एयर एंड इवन अ बैक फ्लिप, ये कर सकता है ये रोबोट. हाफ टर्न हो सकता है एयर पे और बैक फ्लिप भी मार सकता है. ये इतना डेवलप्ड है एटलास, ठीक. एटलास इसकी 4.95 फीट हाइट है, 165 पाउंड का मतलब 75 kg का है. ये यूज लीडर एंड स्टोविजन टू नेविगेट, ये इसके अलग अलग सेंसर्स के नाम दिए हुए हैं. ये क्या कर सकता है, ह्यूमन लाइक एबिलिटी सच एज सेंस ऑफ बैलेंस, सो इट रेजिस्ट
टॉपलिंग व्हेन पुश्ड, कम बैक आफ्टर ए फ्री एंड सोल, एक लिफ्ट करके वापस आ सकता है। सोफी क्रिएटेड बाय हैंसन रोबोट्स अटेंड्स द राइस कॉन्फ्रेंस एज द हांगकांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन। ये एक तरह का ह्यूमनॉइड रोबोट है जो ह्यूमन जैसा ही दिखता है। सोफी इसको सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन, ग्रांटेड सिटीजन सऊदी अरेबिया का दिया गया है इसको, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII के नाम। सोफी हैंसम रोबोटिक्स ने इसको क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कई बार देखिए फार्मिंग के लिए भी हम लोग रोबोट यूज़ करते हैं जो स्प्रे कर सके, ड्रोन टाइप का रोबोट। हैंड्स फ्री हेक्टेयर इज एन एक्सपेरिमेंटल फार्म रन बाय रिसर्चर्स फ्रॉम हार्पर एडमंड यूनिवर्सिटी। ये देखिए रोबोट यूज़ कर रहा है जो यहाँ पर दवाई स्प्रे कर रहा है। ओके, फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन, रोबोटिक फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर में, लॉ इन्फोर्समेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, मिलिट्री में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल ट्रांसफ़र, स्पॉट वेल्डिंग, मशीन लोडिंग एंड लोडिंग, कंटिन्यूस आर्क वेल्डिंग, स्प्रे पेंटिंग, असेंबली, इंस्पेक्शन, इतने फील्ड्स में रोबोट्स का एप्लीकेशन किया जा सकता है। अन नंबर ऑफ फील्ड्स है। रोबोट कैन ऑल्सो बी यूज डू फॉलोइंग टास्क: डर्टी टास्क, रिपीटेटिव टास्क, डेंजरस टास्क, इम्पॉसिबल टास्क। हैंडीकैप है उस जगह पे भी काम कर सकता है, चीपर और लॉन्ग टर्म बेसिस। थैंक यू।